یوم آزادی کے حوالے سے تو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے۔ سندھ سے پنجاب تک آزادی کا جشن شان و شوکت سے منایا گیا۔ پرچم کشائی، تقاریب اور ریلیوں نے سماح باندھ دیا۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ جشن آزادی منانے کے لیے پوری قوم پرجوش ہے اور ہر کوئی اپنے ہی انداز سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میرپور خاص، سیون شریف اور نشہر و فروز میں بھی آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شجرکاری بھی کی گئی۔ مٹیاری میں جشن آزادی کی تقریب میں پاک فوج کے جوانوں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عمرکوٹ میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ لاڑکانہ کی مرکزی تقریب میں پرچم کشائی ہوئی۔ بچوں نے ملی نغمے پڑھ کر لہو گرمایا۔ ٹنڈو جام، گھوٹکی اور میرپور باتھیلوں میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ جوئی میں بھی آزادی کا جشن منانے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ سرگودا، حافظ آباد، پیر محل میں بھی جشن آزادی شان و شوکت سے منایا گیا۔ ناروال اور پاک پتن میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ جیلم میں جشن آزادی پاکستان کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں مرکزی تقریب ہوئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب ضلع کونسل میں منعقد ہوئی۔ یزمان، کوٹ راجا کشن، حبیب آباد اور بورے والا میں بھی آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منایا گیا۔ پاک پتن میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈی سی کمپلیکس میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجران، سیاسی سماجی شخصیات اور میڈیا کی نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ ایک قوم ایک پہچان، ہمارا پیارا پاکستان۔ گلگت سے کشمیر اور گوادر سے خیبر تک جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے۔ عمارتیں جگمگا اٹھی، ہر سو رنگ و نور کا سما ہے۔ کہیں سب ہلالی پرچم، جھنڈیاں اور برقی کمکمے تو کہیں آتش بازی اور چراغاں کا اہتمام کیا گیا۔ پرچم کشائی اور وطن عزیز سے محبت کے اظہار کے لیے دیگر تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن۔ اس احساس کا دن کہ یہی ہے وہ سرزمین جو ہمارا فخر بھی ہے اور ہمارا غرور بھی۔ 4 سدہ میں یوم آزادی کے حوالے سے سپورٹس کمپلیکس میں پرچم کشائی ہوئی۔ ثوابی پولیس نے پرچم کشائی کے بعد جنرل پریڈ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ضلعی پولیس مردان نے بھی جشن آزادی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا۔ لوور تیر ضلعی ہیڈ کوارٹر بلامبٹ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ بگٹی میں یوم پاکستان کے سلسلے میں شہریوں نے شاندار ریلی نکالی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان سے تمام اضلاع میں یوم آزادی پاکستان کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر سیاح اور مقامی لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے۔ مظفر آباد میں ایوان صدر میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں جشن آزادی منانے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی آزادی کا جشن ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب میں طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی نے بھی بھرپور شرکت کی۔ عارف والا میں 125 سالہ بزرگ آدمی نے جب ہندوستان سے ہجرت کی تو مرد، عورتوں اور بچوں پر مشتمل 100 افراد کا قافلہ تھا۔ پاکستان پہنچے تھے صرف 20 لوگ، باقی بچے۔ آزادی کی گھٹن داستان سناتے ہوئے بزرگ آبدیدہ ہو گئے۔ ان سے ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندہ نذیر احمد کھرل۔ جی نذیر احمد۔ اپنے مصیبت نہ پہنچے ہے، یہ قربانیاں دیتی ہیں، بڑے پشو کو خریدی کی تھی، ساری کچھ کیتا ہے، ایسا مشکل بڑا اوکھا لیا ہے کہ ہر بندے خوشیاں منے دن 14 اگست کوئی سائیکل بجائی بجائے، کوئی کارا بجائی بجائے، کوئی بجائی بجائے، نفل پڑھو۔ شکریہ نذیر احمد کھرل۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بابا اشرف کو قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے لاہور کا سفر اور راستے میں کبھی نہ بھولنے والے ظلم و بربریت کے مناظر آج بھی یاد ہیں۔ سلطان سدھو رپورٹ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اولڈ ایج ہوم میں محمد اشرف نامی بزرگ مقیم ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ بابا اشرف کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ شکر اللہ کا ہی پاکستان چ آگے جی رہا تھا، سانو بہت تکلیف پہنچا۔ جدو 3 دن رہتے سی اٹھن ادھر انہیں ایک خون کی شیشی کڈی ڈگ، ادھر بھی کڈی بڑھیاں دے بندیاں دے بھی کمزور ہو جان ہے نا جی۔ چھوٹا لکڑی کہاڑی برشی جہی مسلمانوں کو کھولی جمع کرا لی، وہ من سانو مار سکتے، اسی انہوں نے نہیں سی مار سکتے۔ بابا اشرف نے بتایا کہ انڈیا سے پاکستان کے سفر کے دوران ظلم اور بربریت کے جو مناظر میں نے دیکھے اسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ شکر ہے بابے کا آزاد جن نے سانو آزاد کراتا، نہیں تو اسی انہوں نے غلامی چ انہوں نے بو سنگتے ہیں، سانو مار دے کٹتے ہی، ساڈیاں بچیاں نہ ظلم کرتے ہی، مسیطاں ساڈیاں اگاں بھی لاؤندے سی۔
بابا اشرف کو قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہے. بابا اشرف آج بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیکسی. قیام پاکستان کے وقت اپنے خاندان کی کئی لازوال قربانیاں پیش کرنے والے ملتان کے رہائشی 95 سالہ بابا خلیل احمد خان کا دل آج بھی ماضی کی داستانیں سناتے ہوئے خون کے آنسو روتا ہے. رپورٹ کریں گے چودھری عبدالرحیم شاہد. بہن بھائیوں سمیت خاندان کے 12 افراد کی قیام پاکستان کے وقت جانیں قربان کر کے روہتک سے ٹرین پر سفر کرنے والے شالیمار کالونی ملتان کے 95 سالہ بابا خلیل احمد خان کا کہنا ہے کہ بیاس اسٹیشن پر قیامت کا منظر تھا. اس وقت قیامت کا سما تھا. میرے پاس دوربین تھی، میں نے اوپر سے چڑھ کے دیکھا تو دونوں طرف سکھوں اور ہندوؤں کے جتھے کھڑے ہوئے تھے. ان کے پاس اسلحہ تھا، تلواریں تھی، بلم تھے، نیزے تھے. کوئی ٹرین کے قریب آیا تو بھون دیں گے. بلوچ ریجمنٹ کی سیکورٹی میں پاکستان پہنچے. پاکستان آ گیا. بس اس کا وہ جو سما تھا، وہ جو منظر تھا، وہ میرے پاس وہ الفاظ کا وہ سین کیسے میں پیدا آپ کو کھینچ کے بتلاؤں کہ اس وقت لوگوں کے احساسات کیا تھے. لوگ ساری اسپیشل ٹرین سے اتر آئی، زمین کو چوما، سجدے میں گر پڑے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد. 10 روپے میں 1 مہینے کا گھر کا راشن آتا تھا. اب وہ والا پاکستان نہیں رہا. اس وقت کرپشن کا، رشوت کا یا کوئی برائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ہر آدمی ایمانداری سے کام کر رہا تھا. ہر آدمی دیانتداری سے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا تھا. جبکہ اب ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. عمر کے اس تقاضے میں بھی بابا جی ماضی کی داستانیں سناتے تھکتے نہیں. 95 سالہ بابا خلیل احمد خان آج بھی آزادی وقت کے قصے سناتے ہوئے غمزدہ ہو جاتا ہے. کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد، سچ نیوز ملتان. ملک بھر کی طرح سبی کے شہری بھی 75واں یوم آزادی کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. یوم آزادی کے موقع پر سرکٹ ہاؤس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایک قوم ایک پہچان، ہمارا پیارا پاکستان. پاکستان کا 75واں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اس موقع پر سبی میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یوم آزادی کے موقع پر ایف سی سبی اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر میں بھی پرچم کشائی کی باوقار تقریب کا انعقاد ہوا. سبی کے سرکٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور پولیس کے چاکو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی. تقریب کے دوران فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. تقریب میں ضلعی افسران، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت علاقہ معتبرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پرچم کشائی کی تقریب کے موقع پر سرکٹ ہاؤس میں پودا بھی لگایا گیا. تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی. پارا چنار سمیت ضلع بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پارا چنار پہ پرچم کشائی کے ساتھ سادہ تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا. رپورٹ کریں گے جاوید پنکش. پارا چنار میں 14 اگست جشن آزادی کے دن پرچم کشائی کی سادہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. محرم الحرام کے احترام میں جشن آزادی سادی سے منایا جا رہا ہے. گورنر کاٹیج میں ڈپٹی کمشنر کرم آفاق وزیر اور ڈی پی او کرم طاہر اقبال نے پرچم کشائی کیا اور پودا بھی لگایا. 14 اگست کو ہم اس عزم کا احاطہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے مختلف جگہوں پہ پلانٹیشن کے ذریعے ہرا بھرا بنانا ہے اپنی اگلی نسلوں کے لیے. صدر لوئر کرم ایکسپورٹ اسکول میں بھی ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا جس میں بچوں نے وطن سے بتحاشا محبت کا اظہار کیا. اس موقع پر 116 ونگ کے کیپٹن عدنان اور نیشنل پیس کونسل کی ضلعی چیئرمین ملک مومن خان نے کہا کہ قبائلی عوام کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں. کوہاٹ اور درہ آدم خیل سمیت تینوں تحصیلوں میں یوم آزادی نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. اسی پہ رپورٹ کریں گے علی پنکش. ملک بھر کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی 14 اگست کو سرکاری طور پر منایا گیا. ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ روشن محسود نے پاکستانی پرچم ہوا میں لہرا کر باقاعدہ طور پر دن کا آغاز کیا اور ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، لوکل گورنمنٹ کے سربراہان، تحصیل میونسپل عملہ، ڈسٹرکٹ چیئرمین، صوبائی رکن ضیاءاللہ خان بنگش، سابق ضلع ناظم نسیم افریدی، اسکول کے بچوں، اساتذہ، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی
डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा कि आज़ादी के पुरमसरत मौका पर हम अहद करते हैं कि बुलंद इरादों, हिम्मत और अज़म व इस्तिक़लाल से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अजीम से अजीमतर बनाने और आलमी अक़वाम में बाविकार मुकाम दिलवाने के लिए एक कौम की हैसियत से काम करेंगे। इस मौका पर ज़िया खान बंगश ने भी खिताब करते हुए कहा कि हर फर्द को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाएं ताकि मुल्क की इज्जत और इफ्तिखार में इजाफा हो। तकरीब में बच्चों ने भी मिली नगमे और तकारीर पेश की। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। आजादी का जश्न हंगू में भी शान और शौकत से मनाया गया। डीसी ऑफिस हंगू में तकरीब का इनेकाद किया गया। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह हंगू में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से डीसी ऑफिस हंगू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम, कर्नल उसामा और डीपीओ इकरामुल्लाह खान समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान, अक़लियती बिरादरी, इलाका अवाम और तुलबा ने भी कसर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मौके पर डीसी सरमद सलीम अकरम ने कर्नल उसामा और डीपीओ इकरामुल्लाह खान के हमरा परचम कुशाई की, जबकि लीवी फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर तुलबा ने भी जश्न आज़ादी की खुशियों में हिस्सा लेते हुए मिली नगमे, कौमी तराना, तकारीर और टेबलो पेश करते हुए शुरका से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। हमारे मुल्क की आज़ादी में लाखों शुहदा का खून शामिल है। हमारे बुजुर्गों और उलमाए किराम की अजीम कुर्बानियों की बदौलत हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मुआरज़ वजूद में आया। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि आज़ादी की कदर करना, मुल्क की सलामती, बका और तरक्की के लिए काम करना हमारा मकसद होना चाहिए। चेयरमैन आल मिनारिटी मीत हरी दयाल संधू ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मिनारिटी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान को कायम व दायम रखना और तरक्की की राह पर गामजन करना हम पर फर्ज है। तकरीब के आखिर में चेयरमैन यूथ असम्बली सैयद अदनान की जानिब से बनाए गए 60 फुट कौमी परचम के साथ वाक भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। मंडी बहाउद्दीन के जवानों ने आज़ादी का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज अपनाया। नौजवानों ने 8 फीट चौड़ा और 280 फीट लंबा पाकिस्तानी परचम तैयार कर लिया। इरफान वराइच रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवा में जश्न आज़ादी रवायती अकीदत और एहतराम और जोश जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। गलियों, बाजारों और घरों को सबज झंडे और झंडियों से सजाया गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आज़ादी की नेमत का शुक्र बजा ला रहे हैं और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी खुशी के जज्बा से सरशार मोहल्ला गुड़ा के रिहायशी मकामी नौजवानों ने 8 फुट चौड़ा और 280 फुट लंबा पाकिस्तानी सबज हलाली परचम तैयार और हम लोग आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। इसकी कदरों कीमत मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से पूछें जो भारतीय जुल्म जबर का सामना करके आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। पतोकी में आजादी का जश्न मनाने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के सरबराह ने खुसूसी शिरकत की। पतोकी के नवाही इलाका हुसैन खान में शानदार तकरीब हुई। सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के सरबराह सरदार गोपाल सिंह चावला ने शिरकत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान उनकी धड़कन है, वो इसके लिए अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। इस दौरान वो मकबूजा कश्मीर का जिक्र करना भी ना भूले। पाकिस्तान भर की तरह डोडियाल में आजादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। आसिफ अली रिपोर्ट करें। पाकिस्तान भर की तरह डोडियाल में भी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर डोडियाल में जश्न आजादी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। जश्न आजादी का दिन ज़हनी, जिस्मानी माजूरी और बसारत से महरूम बच्चों ने भी इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल तलबा और तलबात ने हिस्सा लेकर रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की और मुख्तलिफ मिली नगमों को इशारों पर परफॉर्म किया। इदारे की प्रिंसिपल ने कहा कि सेंटर का मकसद इन बच्चों को मुआशरे का एक फाल शहरी बनाना मकसद है, ताकि ये बच्चे मुआशरे पर बोझ न बन सकें और जिंदगी में आगे बढ़ने में मुफीद शहरी बन सकें। इस तकरीब में बच्चों के वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत करके इन मखसूस खुसूसियात के हामिल बच्चों को खूब हौसला अफजाई की। अगर हुकूमती सरपरस्ती में इस तरह के इदारे और सेंटर कायम हो तो ज़हनी, जिस्मानी और बसारत से महरूम बच्चों को मुआशरे का एक बाकिरदार और बासाहिलियत फर्द बनाकर वतन अजीज की खिदमत की जा सकती है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मनानवाला में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। टाउन कमेटी मनानवाला में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौका पर टाउन कमेटी मानावाला में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया, जिसमें ताजर, सियासी समाजी शख्सियात, मीडिया के नुमाइंदगान और बिलखसूस
SHO थाना मानावाला ने शिरकत की। आज़ादी को हासिल तो किया जा सकता है लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो जिस तरह ये मुहर्रमुल हराम में है, मुहर्रमुल हराम का एक अपना तकद्दस है, एक अपना एहतराम है, तो हमें चाहिए कि इस आज़ादी की सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अपने मुहर्रमुल हराम के जो लवाज़मात हैं, जो उसका तकद्दस है, उसको किसी सूरत भी पामाल ना होने दें। परचम कशाई की तकरीब के अख्ताम पर कौम व मुल्क की सलामती, खुशहाली और कश्मीर बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जिला चनियोट में भी जश्न आज़ादी इंतहाई मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। मुल्क भर की तरह जिला चनियोट में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब और रैलियों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सब्जाजार में मुनक्कद हुई, जिसमें सियासी, समाजी, वकला, ताजर और तमाम महकमों के अफसरान, मीडिया नुमाइंदान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सैरिंग बजाकर किया गया। परचम कुशाई की तकरीब में रेस्क्यू 1122 के चौको चौबान दस्ते ने सलामी पेश की। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चनियोट। पाकिस्तान यौम आज़ादी अलीपुर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मकामी इंतजामिया की जानिब से परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। परवेज इकबाल रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन और SDPO अलीपुर यूसुफ हारून ने परचम कुशाई की। रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने सलामी पेश की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई गई। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 मीडिया, वकला, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। परचम कुशाई के बाद पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के आज़म में शजरकारी भी की गई। आज़ादी पाकिस्तान के दिन हम कायदे आज़म और इलामा इकबाल के पैगाम के मुताबिक हर फर्द वाहिद को ये पैगाम है कि वो मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि हर फर्द जो है हर फर्द से कौम बनती है और हमें ऐसा कौम मुत्तहिद होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए सोचना है। ये पैगाम है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर इस मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, जिद्दोजहद करें। मुल्क की तमीर व तरक्की में हर शख्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने हिस्से का काम करे। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकबल, सच न्यूज अलीपुर। कमीर शरीफ में यौम आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने, सिविल सोसाइटी और सहाफियों ने भरपूर शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे अफसन सियाद। कमीर शरीफ में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई। ये रैली उन्नी मोड़ से शुरू हुई। रैली में सबज लाली परचम की बहार देखने को मिली। रैली में क़यादत यंग जनरेशन के सरबराह से पीर सैयद हसनैन नकवी और मार यासीन और मोहम्मद अकरम और पप्पू जोइया ने की। इसी बारे यंग जनरेशन मीडिया क्लब के उहदेदारान ने बताया कि तकरीब का इनेकाद यंग जर्नलिस्ट क्लब कमीर की जानब से किया गया है। ये सारी बॉडी, ये सारे उहदेदारान यंग जर्नलिस्ट कमीर के हैं और हमने ये तहैया किया था कि हम अब कमीर को वो दर्जे सहाफत देंगे जो आज तक नहीं हो सका। रैली में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। यंग जनरेशन के उहदेदारान का कहना है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। रैली का इख्तिताम यंग जनरेशन मीडिया क्लब के चेयरमैन मार यासीन के डेरे पर हुई और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए कमीर की इत्तेहाद व मजबूती के लिए दुआ भी की गई। पतोकी में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब का इनेकाद किया गया। आज़ादी मार्च और मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली गई। अली शेर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह पतोकी में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और शहर भर में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकारीब और रैलियों का सिलसिला जारी है। दिन का आगाज होते ही शहरियों की जानब से जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब मुनक्कद की गई। ताजर बरादरी की जानब से जश्न आज़ादी के हवाले से 100 पाउंड का केक काटा गया और मिली नगमे बजाए गए, जहां मंचले नौजवानों की जानिब से खूब हल्ला गुल्ला किया गया। दूसरी तरफ सरकारी सतह पर म्युनिसिपल कमेटी ग्राउंड में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में मुकामी MNA सरदार तालब हसन नकई, मुकामी इंतजामिया के अफसरान, DSP सर्कल पतोकी और मुतलका पुलिस अफसरान साथ सियासी व समाजी हल्का के लोगों समेत असातिज़ा, वकला और मुहिब वतन शहरियों कसीर तादाद ने शिरकत की, जहां पुलिस और रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने कौमी परचम वाले लिबास ज़ेबे तन किए हुए थे। शहर में तकारीब का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज पतोकी। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
कौमें अपनी आज़ादी का दिन शाया निशान तरीके से मनाती हैं। बखर में भी जश्न आज़ादी यौम आज़ादी कश्मीर के हवाले से मनाया गया। नासिर अब्बास बलूच रिपोर्ट करें। जिला बकर में भी यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बहार नजर आ रही है। जिला भर की तमाम तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में 14 अगस्त की तकरीबात शाया निशान तरीके से मनाई जा रही हैं। 74वें यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब DC ऑफिस के सब्जादार में मुनक्किद की गई, जहाँ पर 8:58 पर सायरन बजाया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी MNA मोहम्मद अफजल खान डांडा, MPA आमिर इनायत खान शानी, DC बकर सैयद मूसा रजा, DPO बकर राना ताहिर रहमान खान और सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। परचम कुशाई के मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए सलामी दी। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV, भक्कर। मुल्क का यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मुमलिकत खुदादात को तरक्की और खुशहाली की नई मनाजिल पर पहुँचाने के लिए हम सब एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे इस्लाफ की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। 14 अगस्त के दिन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेलौस और बेखौफ क़यादत में लाखों कुर्बानियों के बाद एक अलहदा मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर उभरा। ज़हूर पाकिस्तान महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खालिक़े कायनात की अजीम हिकमत अमली का हिस्सा है, जिससे रमजान, कुरान और पाकिस्तान की निस्बत ताल्लुक के दाग बैल पड़ी। 14 अगस्त हमारे लिए वाकई एक बहुत बड़ा और काबिल फख्र दिन है, क्योंकि आजाद कौमें ही अपनी खुशी और गमी के दिन आजादी से मना सकती हैं। 14 अगस्त हमें एहसास दिलाता है इस मुल्क पर मर मिटने का। पूरी कौम 14 अगस्त को वतन अजीज का 74वां यौम आज़ादी रवायती मिली जोश और जज्बे और आज़ादी की तहरीक में शरीक अपने लाखों की अजीम कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने के अज़म के साथ मना रही है। यह दिन कौमी जज्बे और मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने के अज़म की तजदीद का भी दिन है, ताकि जो ख्वाब बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, इसे पूरा किया जा सके। कौमी अदारों पर कौम के एतमाद को तकवीत देने के अज़म की भी तजदीद करेगा, जिसके जरिए कौम के समाजी और इक्तिसादी तरक्की, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किरदार को उजागर किया जाए। बरे सखीर में आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत के क़याम का देरीना ख्वाब 14 अगस्त 1947 को शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसकी ताबीर एक फर्द वाहिद के चश्मे करिश्मा साज का नतीजा थी, और वो फर्द वाहिद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म ने इस मुल्क की तश्कील के लिए अपनी मुखलिक बीमारी को भी छुपाए रखा, इसे पाकिस्तान की तख्लीक में आड़े नहीं आने दिया। के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये एक हकीकत है कि जब बरे सगीर के मुसलमान अपनी बका और सलामती की जानिब से बड़ी हद तक मायूस हो चुके थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तदब्बुर, फरासत, गैर मुतज़ल्ज़िल आज़म, सियासी बसीरत और बेमिसल कायदाना सिफात से काम लेकर मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया, और 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुतालबा पाकिस्तान की ऐसी वकालत की कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। लोग इस हकीकत से बेखबर थे कि जिन्ना तपे दिक जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद जियारत में सेहत बिगड़ने पर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपे दिक का मर्ज लाक है, तो जिन्ना ने जवाब दिया कि वो 12 बरस से जानते हैं, और इसे इसलिए ज़हर नहीं किया था कि हिंदू उनकी मौत का इंतजार न करने लगे। माउंट बैटन ने कायद आज़म की वफात की खबर सुनकर कहा था कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने उन्हें बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे, तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम न होने देता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे। पाकिस्तान बनने के बाद नौमौलूद मुमलिकत के मसाइल ऐसे न थे जिनको कायद आज़म नजरअंदाज कर देते या दूसरों पर छोड़ देते। पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी का तयन और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना, आइन साज असम्बली, सरकारी मुलाजमीन
اور مسلح افواج کو نہ صرف ان کے فرائض سے آگاہ کرنا بلکہ ان کو یہ باور کرانا کہ قوم ان سے کیا توقعات رکھتی ہے، ایسے مسائل پر بھرپور توجہ دی۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم صرف 1 روپیہ بطور تنخواہ لیا کرتے تھے، سرکاری فنڈ سے کبھی اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اپنی علالت کے دوران قائد نے معالجین کے اصرار کے باوجود برطانیہ اور امریکہ سے ڈاکٹر بلوانے سے انکار کر دیا کہ اس سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے مہاجر کیمپوں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کی اور مہاجرین کو ذاتی فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے امداد دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کشمیریوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اتنی ہی محبت کشمیریوں کو بھی ان سے تھی۔ قائد اعظم نے کشمیریوں کو پاکستان کی شہرت بھی قرار دیا تھا۔ آپ نے کشمیر کے 4 دورے کیے تھے۔ جشن آزادی کا پروقار دن بلوچستان میں بھی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کے سبززار پر منعقد ہوئی۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جشن آزادی کی مرکزی اور پروقار تقریب بلوچستان اسمبلی کے سبززار پر منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، اسپیکر صوبائی اسمبلی عبدالقدوس پزنجو، صوبائی وزراء، اراکین صوبائی اسمبلی سمیت دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ پرچم کشائی کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا تھا کہ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے اور ہمیں احساس دلاتا ہے کہ پاک دھرتی کی سلامتی اور ترقی کے لیے کس طرح ہم انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 14 اگست میرے اور آپ کے لیے بھی اسی دن کی نسبت اس ملت پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ یہ تحفہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی بگاڑ اور اس کی بہتری ہمارے ہاتھ میں۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے خطاب میں مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا۔ 14 اگست کے حوالے سے اگر ہم اپنے کشمیر بھائیوں اور بہنوں کو یاد نہ کریں تو ناانصافی ہوگی۔ اس لیے بھی ناانصافی ہوگی، نہ صرف وہ ایک امت مسلمہ ہے بلکہ انسانیت کے حوالے سے کہ آج جس انداز میں بھارت نے اپنا ایک ظلمانہ طریقہ کار مسلط وہاں کیا ہے۔ تقریب کے دوران مختلف اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے اور شرکا سے خوب داد وصول کی۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ لوور دیر میں جاری شجرکاری مہم کے دوران شمردین خال کے مقام پر 5000 پودے لگائے جائیں گے۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ۔ لوور دیر میں جشن آزادی کے سلسلے جاری شجرکاری مہم کے دوران شمردین خال کے مقام پر 5000 پودے لگائے گئے۔ اس سلسلے میں لوور دیر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر محکمہ پالس کے مقاصد خان، اسسٹنٹ کمشنر تیمرگڑھ طاہر خاٹک، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صادق احمد، ٹیمو خال، پذیر سبحان، تحصیلدار خال سمیت عمائدین علاقہ موجود تھے۔ آلموسٹ آج ہم 5000 کے قریب سیپلنگز جو ہے وہ پلانٹ کریں گے اور 14 اگست کی جو جشن آزادی کا پروگرام ہے وہ گرین پاکستان ڈے کے حوالے سے منائیں گے۔ پودے لگانے کے ایک مانسون ہے، ایک سپرنگ ہے، تو یہ مانسون کا سیزن اب ہم شروع کر رہے ہیں، شروع ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم آج ایک پروگرام 5000 پودے ہم شمردین میں لگا رہے ہیں۔ تقریب کے موقع پر اے ڈی سی اشفاق خان نے کہا کہ سرسبز اور شاداب لوور دیر بنانے کے لیے ہم سب کو شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور ہر فرد کم از کم ایک پودا ضرور لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات کی بقا کے لیے انتظامیہ، محکمہ پالس اور شہری ایک پیج پر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، خال، لوور دیر۔ خانیوال میں پرچم کشائی اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ راشد حسین رپورٹ کریں گے۔ خانیوال میں یوم آزادی کے موقع پر جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ملک حاصل کرنے میں جو شہداء کی قربانیاں ہیں، ان کے خون ہے، لیکن آج انہی کے برکت سے یہ پرچم بلند ہے اور ہم اس وقت اس پرچم کے سائے کے نیچے سارے جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
इस कौम को इसी तरह परचम तले एक रखे। जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, हम इंशाअल्लाह उन शहीदों को, उन मुजाहिदों को याद करते रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मौलाना ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी, डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद अजहर समेत दीगर उलमाए कराम और शहरियों ने परचम कुशाई और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। यौम आज़ादी के मौका पर जहां परचम कुशाई का सिलसिला जारी है, वहीं उलमाए कराम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी का सिलसिला भी जारी है। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। यौम आशूर में जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार ने जानों की कुर्बानी पेश की, वहां असहाबे इमाम हुसैन ज़ुहैर इब्ने कैन, हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने ओस्टा समेत दीगर शख्ता की कुर्बानियां भी अजीम तर हैं। 5 मुहर्रम को फौज अश्किया में मजीद दस्ते शामिल हुए। ये नोहे और मजालिस बबा की जा रही हैं करबला वालों की याद में। उन्हीं करबला वालों की याद में जो कुर्बान हुए इस्लाम की बका के लिए। आज 5 मुहर्रम भी आन पहुंची। यकुम मुहर्रम से शुरू होने वाला आज़ादारी सैयदुश्शुहदा का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 मुहर्रम की मजालिस में असहाबे इमाम हुसैन, ज़ुहैर इब्ने कैन, हबीब इब्ने मज़ाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा की कुर्बानियों को याद किया जाता है। इमाम अली मकाम के शिशमाही शहजादा अली असगर का शबीए झूला बरामद किया जाता है। ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ। हज़रत अली असगर करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं। शहजादे अली असगर को यजीदी फौज के माहिर निशानाबाज हुरमला लईन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर तीर से ज़िबह किया था। यजीदी फौज ने पानी के बजाय तीर से हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में यजीदी फौज ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जुल्म भी ढाया जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। करबला में सर न देते गर हुसैन इब्ने अली हर जमाने में यजीद वक्त बैत मांगते। यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहता था। इनकार पर खानबादे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। खवातीन को कैद कर लिया, लेकिन फिर भी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटा न पाया। 1400 साल गुजर गए, लेकिन जिक्र हुसैन आज भी जिंदा और जावेद है। करबला आज भी हुर्रियत के परवानों को हर दौर के जालिम से टकराने का दर्स दे रही है। वो एक हुसैन जो तन्हा था करबला में, अब उसके साथ जमाना दिखाई देता है। कोरोना वायरस से 73 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4786 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 24,339 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,94,699 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 3,70,599, सिंध में 4,09,578 है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,51,466, जबकि बलूचिस्तान में 31,507 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 9,228, जबकि इस्लामाबाद में 93,339 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 28,982 है। मुल्क भर में अब तक 1,67,94,167 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,136 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,83,754 मरीज सेहतयाब हो चुके। 4,729 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 11,329 हो गई। सिंध में 6,384, खैबर पख्तूनख्वा में 4,640 है। इस्लामाबाद में 830, जबकि बलूचिस्तान में 332 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 162 और आजाद कश्मीर में 662 मरीज
जान से हाथ धो बैठे। जश्न आज़ादी ऐसा मौका है जब हर कोई अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। पेशावर के एक रबाब नवाज ने कौमी तराने को रबाब की धुन पर भजाकर अपनी अकीदत का इजहार किया है। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। वतन से मोहब्बत हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मखसूस अंदाज में वतन अजीज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पेशावर के एक रबाब नवाज गुलाब अफरीदी ने जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी तराने की धुन रबाब पर बजाकर इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया है। गुलाब अफरीदी ने पहली मर्तबा कौमी तराने को रबाब की तारों पर छेड़ने का तजुर्बा किया है। इनका कहना है कि इसे रबाब पर ये धुन तैयार करने में 2 दिन लगे। लगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बाइस फख्र है कि हम अपना नेशनल एंथम मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते हैं और फिर रबाब में जो हमारा रवायती और सकाफती इंस्ट्रूमेंट है। कौमी तराने को रबाब पर बजाने में पेशावर के महरूफ गिटारिस्ट अशबंद राय ने भी इनका साथ दिया। रबाब और गिटार के मिलाप ने कौमी तराने की धुन को और भी दिलकश बना दिया है। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। जिला चकवाल में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात में परचम कुशाई की गई और जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह जिला चकवाल में भी यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ भरपूर अंदाज में मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने परचम कुशाई की और उन्हें पुलिस और रेस्क्यू वारंटों की तरफ से सलामी दी गई। चकवाल प्रेस क्लब में भी यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की गई और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। करीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में हमारे असलाफ ने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर अनथक मेहनत और लाजवाब कुर्बानी से वतन अजीज पाकिस्तान हासिल किया। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तंजीमुल अखवान पाकिस्तान के सरबराह मारूफ मजहबी स्कॉलर अमीर अब्दुल कदीर अवान का कहना था। इस अहमियत को जानने की तौफीक अता फरमाए कि आज़ादी क्या चीज़, क्योंकि ये कैफियत और हाल वो बता सकते हैं जो महकूमे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो बता सकते थे जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी लेकिन वो दार दुनिया से चले गए। हमें उनकी कब्रें शहादत देती हैं, उनके वो कलाम, वो तहरीरें और आज़ादी और हिजरत के दिन के जो हमारे पास विजुअल है वो हमें वो दास्तान सुनाते हैं, लेकिन सुनना, देखना और उसमें से गुजरना बड़ा फर्क है। क्वाद के मुख्तलिफ स्कूलों में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई। परचम कुशाई की गई जिसमें नन्हे बच्चों ने मिली नगमे पढ़े और टैबलो पेश किए। कैमरामैन अजय तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर का उर्स जारी है। बहश्ती दरवाजा आज खोला जाएगा लेकिन आम जायरीन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद के सालाना 779वां उर्स जारी है। बाबा जन्नत जिसे बिस्ती दरवाजा भी कहा जाता है आज मगरब के बाद खोला जाएगा। हर साल की तरह मगरब से लेकर फजर तक बिस्ती दरवाजा खोला जाएगा। हर साल बिस्ती दरवाजा 5 मुहर्रम राम से लेकर 10 मुहर्रम राम तक 5 रोजों के लिए खोला जाता है, लेकिन इस साल कोरोना खदशात के पेश नजर उर्स महदूद करते हुए सिर्फ 2 दिनों के लिए खोला जाएगा। आम जायरीन के लिए पाबंदी ऐद है और बिस्ती दरवाजा 5 और 6 मुहर्रम की शब को खोला जाएगा। दरबार के तमाम
तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर आर्जी गेट लगाकर बंद किया गया है। सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और CCTV कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ जो तारिक अली, सच TV, पाकपतन। सुवात में भी जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल मकोरा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। वकार स्वाति रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह जिला स्वात में भी जश्न आज़ादी पूरी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जश्न आज़ादी के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंगौरा में भी खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमानी खसूसी चेयरमैन डेडक फजल हकीम खान थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली फजल हकीम खान ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तकरीब में स्कूल के तलबा ने वतन से मोहब्बत की खातिर मिलने नग़मे पेश किए, जबकि छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में कौमी परचम लहराते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में बड़ी तादाद में इलाके के लोगों और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद स्वाति, सच TV, स्वात। दादू में भी जश्न आज़ादी निहायत जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहर भर से रैलियां निकाली गईं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। शुएब तहीम रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है। मुल्क भर की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में शहर भर से रैलियां निकाली गई। रैलियों में बड़ों के साथ बच्चों ने भी शिरकत करके सब्ज़ लाली परचम लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर रैली के शुरका का कहना था कि हम खुश नसीब हैं जो हमें एक आज़ाद वतन मिला है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मोहब्बे वतन और पाक आर्मी के साथ शाना बशाना साथ खड़ी है। पाकिस्तान का दिन है, उसका मोहब्बत का सबूत दिया है। PGADM ये तंजीम है, ये हर साल पाकिस्तान की ये जुलूस मनाती है और ये मोहब्बे वतन का सबूत देती है अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के तरफ से 14 अगस्त की रैली निकाली है, जिसमें दादू, सेवन, भान और खैरपुर नातन शाह के सब दोस्त शरीक हुए हैं और कश्मीर की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। दादू की आवाम ने भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी का दिन मनाकर ये साबित करके दिखाया कि बाशऊर कौम ही अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। मुल्क की बका के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शुएब तहीम, सच TV, दादू। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जैकबाबाद में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट कर रहे हैं। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के पुरमसर दिन पर जैकबाद के मदरसतुल कुरआन में एक पुरवकार, शानदार और खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से सूबाई रहनुमा जमायत इस्लामी हल्का खवातीन व प्रिंसिपल तालबात सेक्शन मदरसतुल कुरआन शाहिदा एजाज का कहना था कि अपने बच्चों के जहनों में भी ये बात डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस्लाम एक ही चीज है, ताकि हमारी ये नई नस्ल जो है वो इस्लाम के मुताबिक इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से बना सके। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच TV।